جگہ پر بات کر رہا تھا تو مجھے ایک بات سمجھ آ رہی، جب ہم خدا کے لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم کسی چیز کو اپنے اندر نہیں اتارتے اس کا ذائقہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا، اور وہ ذائقہ جو ہم دنیاوی طور پر اپنے اندر رکھتے ہیں وہ جلد سے جلد ختم ہو جاتا ہے، لیکن جو حقیقی ذائقہ ہے وہ کلام مقدس ہے، اور خدا کے بڑے بڑے عالم اور خدا کے بڑے بڑے خادم اس بات پر حیران ہے کہ وہ ذائقہ ہم میں سے ظاہر کیوں نہیں ہوا، اس لیے کہ ہم خدا کے کلام پر، خدا کی باتوں پر ہم نے بھروسے میں بھید بھاؤ رکھ دیا۔ بھروسہ ایمان کو جوڑنے کی ایک بہت بڑی کڑی ہے، ایمان کو جوڑنے کی ایک بہت بڑی کڑی ہے جو ہم محسوس سنیے گا، جب آپ سنیں گے نہیں، میں آگے ہی کہہ رہا ہوں کہ جب ہم کسی چیز کا ذائقہ اپنے اندر نہیں اتارتے تو ہمیں محسوس نہیں ہوتا، اس لیے آپ کا سننا، آپ کی توجہ، آپ کا دھیان ہی آپ کے گھرانوں کی سلامتی ہے۔ میں یہاں پر ایک ہمارا بھائی جیسی بیٹھا ہوا، اور میں نے ان کو تمثیل دی وہاں پر کہ میں نے کہا جب میں ایک وارڈ میں کھڑا تھا تو وہاں پر کسی نے مجھے روکا کہ یہاں سے پانی نہ پی، اسے میں نے کیا کہا، اسے مجھے کہا کہ یہاں سے پانی نہ پی کیونکہ یہ جگہ نہیں صحیح، یہاں پر بہت سے جرمز ہیں، جراثیم ہیں، آپ کو بیماری لگ جائے گی۔ اور اسی وقت میرے کان میں ایک آواز آئی کہ میں تجھے باہر سے کھلانے والی ان تمام چیزوں سے کیا کروں گا، بچاؤں گا۔ اب یہ وہ ذائقہ ہے جو ہمارے اندر ہے، اور وہ اس وقت ہمیں محسوس ہوتا ہے، یہ وہ خدا کا کلام ہے جو ہم سنتے ہیں، اور وقت کی نسبت ہمارے سامنے آ کر کیا ہوتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے اور ہماری سہایتا کرتا ہے۔ جب آپ کلام سنیں گے نہیں تو تب آپ کے کانوں میں وہ آواز بھی نہیں پڑے گی۔ جیسے اس نے مجھے اس بات کے بارے میں آگاہی دی کہ تو پی لے اور تو شکر کر کے پی، تجھے کچھ بھی نہ ہوگا، اور میں نے ویسے ہی کیا، میں نے 2 گلاس کی بجائے وہاں سے 3 گلاس پیے، اس لیے کہ مجھے یقین تھا کہ میرے کان کے پاس خدا خود موجود ہے اور مجھے کہہ رہا ہے کہ خوف نہ کر۔ ایسا ہی ہے۔ اب یہاں پر بات چل رہی ہے بھروسے کی، یہاں پر بات چل رہی ہے اس یقین کی جو ایمان کو سیدھی راہ پر لے کر چلتا ہے۔ ہمیں کسی چیز پر بھروسہ ہو جاتا ہے، یقین کہ یہ راہ درست ہے جس پر ہم چل رہے ہیں، تو ہم اس بھروسے اور یقین پر کیا کرتے ہیں، چل پڑتے ہیں۔ اور خدا پر بھروسہ رکھنا اور اپنے پر بھروسہ رکھنا یہ علیحدہ علیحدہ باتیں ہیں، یہ ڈفرینٹ ہے۔ اس میں اگر کوئی شخص اس بات کا یقین کرتا ہے کہ وہ جو کر رہا ہے اس کے وسیلہ وہ بچ رہا ہے تو وہ غلط سوچ رہا ہے، کیونکہ جب ہم اپنے آپ پر بلیو کرتے ہیں، بھروسہ رکھتے ہیں، ہم اس بات پر تکیہ کرتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں اس کے وسیلہ ہم بچ جائیں گے، تو ہم کیا کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، کیونکہ خدا کا کلام مقدس ہمیں اس بات سے روکتا ہے۔ خداوند یسوع المسیح اپنی زبان مبارک سے ہی آپ لوگوں کے لیے ایک خوبصورت تمثیل کہتے ہیں۔ وہ اس تمثیل میں کہہ رہے ہیں کہ 2 لوگ ہیکل میں جمع ہوئے، ایک فریسی اور ایک مسئول لینے والا، وہ دونوں وہاں پر موجود تھے، اور ان میں جو وہ فریسی تھا وہ خدا کے آگے بڑا آواز گلا پاڑ کر میری طرح اونچی آواز میں دریغ نہیں کر رہا تھا، اور چیخ کر خدا سے کہہ رہا تھا کہ میں ٹھیک وقت پر دعا کرتا ہوں، تیرا کلام بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، اور میں وقت پر دیہا یکی بھی دیتا ہوں، میں ان باتوں سے پوری طرح قائل ہوں جو تیرے کلام میں لکھی ہے، اور وہ میں سب کرتا ہوں، اور میں جھوٹ بھی نہیں بولتا، اور میں زنا بھی نہیں کرتا، اور اس مسئول لینے والے کی طرح لوگوں کو تنگ بھی نہیں کرتا، اس لیے مجھے کیا کر، قبول کر۔ اور خداوند یسوع کہتا ہے کہ جو وہاں پر مسئول لینے والا تھا، گنہگار تھا،
निहायत कमजोर था, वो लोगों को लूटता था, मारता था, लेकिन जब वो हैकल में आया, खुदा के सामने आया, तो उसको इतनी जुर्रत न थी कि वो आसमान की तरफ अपनी आंख भी उठा सके, और वो रो रो कर कहता कि ऐ कादिर मुतलक खुदा आसमानी पिता, मैं निहायत गुनहगार हूँ और मैं इस लायक नहीं कि मैं तेरे मज़बा के पास खड़ा हो सकूं, क्योंकि मैं इस लायक नहीं कि मेरी दुआ सुनी जाए, मैं इस लायक नहीं कि मैं तेरे हजूर कोई भी वड्याई कर सकूं, मैं इस लायक नहीं कि मैं अपनी उस गंदी कमाई से तेरे हजूर कुछ रख सकूं, मैं इस लायक नहीं कि मैं तेरे हजूर झुककर दुआ कर सकूं, क्योंकि मैं निहायत क्या हूँ, गुनहगार हूँ। तो खुदावंद यीशु कहता है कि इनमें दोनों में कौन मकबूल ठहरा, कौन मकबूल ठहरा? वो जो खुदा के हजूर आजिज बना, वो जो खुदा के हजूर इस बात पर कहता रहा कि मैं गुनहगार हूँ और मैं इस लायक नहीं। जो खुदा की बादशाही में या खुदा के घर में अपने आप को छोटा करेगा वो बड़ा किया जाएगा, और जो बड़ा करेगा वो छोटा किया जाएगा। आज जो कलाम में मत्ती रसूल की मार्फत उसका 9 बाब और उसका 18 बाब और उसकी 9 आयत में से आपके सामने रखना चाहता था, वो था भरोसा। हम जो इंसान आम दुनिया में वक्त गुजारते हैं, हम जैसे किसी ओहदे पर हैं, एल्डर साहब हैं, 2 एल्डर्स हैं, और कोई बहुत से ऐसे लोग हैं जैसे टीचर्स हैं, क्वायर के लोग, और अच्छे ऐसे लोग जो दुआ करते हैं और बहुत सी यकीय भी देते हैं, हदिये भी गुजारते हैं, वक्त पर सब कुछ करते हैं। क्या करते हैं? वक्त पर सब कुछ करते हैं, लेकिन तकिया किस पर करते हैं? खुदा पर नहीं करते। वो इस बात पर अहंकार करते हैं कि उनके पास बहुत कुछ है, उनके पास पैसा है, उनके पास दौलत है, उनके पास इख्तियार है, उनके पास खुदा की मोहब्बत है, उनके पास हर रोज जो वो सुबह दोपहर शाम दुआ करते हैं, वो लोगों को तालीम देते हैं मेरी तरह, वो लोगों के साथ हम कलाम होते हैं, बातें करते हैं मसीह की, इसलिए हमें खुदा पर भरोसा रखने की जरूरत नहीं। ये सब गलत। हम उसकी मानंद हो गए जो वो फरीसी वहां पर जाहिर करता। हमारा यकीन इस बात पर होना चाहिए कि हमें वो बरकतें जो हम में हैं, वो नेमतें जो हम में हैं, वो दौलत और दौलत की बहुत सी नेमतें, औलाद जैसी नेमत, ये सब खुदा की दी हुई नेमतें हैं। अगर वो चाहता तो वो ये सब कुछ खींच ले, अगर वो चाहे तो वो इंसान में से ये सब कुछ ले ले, लेकिन वो ऐसा हरगिज नहीं करता, क्योंकि वो कौन है? वो मेहरबान है, वो मोहब्बत रखने वाला खुदा है। मैं कल कलाम मुकद्दस में पढ़ रहा था, तो कोई भी किसी बात में भी यस्सु को अगर यस्सु पर ईमान नहीं रखता तो वो बच नहीं सकता, क्योंकि ईमान रखने के लिए ईमान, मैंने आगे ही बताया कि एक सीधी राह है, और फजल कौन है? यस्सु है। और हर शख्स की जिंदगी में फजल का होना जरूरी है, क्योंकि फजल ऐसा रहम है जो इंसान पर किया गया। फजल के मानी है रहम, फजल के मानी क्या है? रहम, जो इंसान पर किया गया। और वो रहम कौन है? वो यीशु है, क्योंकि वो आपके लिए आज भी कहता है कि खुदा इनको माफ कर, क्योंकि नहीं जानते, इसलिए वो रहम है। और फजल ही से हम जिंदगी पाते हैं, फजल ही से हम नेमतें पाते हैं, यीशु से ही हम जिंदगी पाते हैं, और यीशु से ही हम फजल पाते हैं, और यीशु ही हमारा हकीकी भरोसा होना चाहिए। खुदावन यीशु ही हमारा हकीकी भरोसा क्या होना चाहिए? होना चाहिए। लेकिन हमारी जिंदगी अपने अहंकार पर, अपने तकब्बर पर, और अपनी उन हरकत पर, जो हम उन रविशों पर जो हम कलाम मुकद्दस से चंद दिनों के लिए अच्छी अच्छी बातें करके सीख लेते हैं, और हम उस पर तकिया करना शुरू कर देते हैं। हम किसी के घर में जाते हैं, कलीसिया में भी तो ऐसा ही होता है, हम उनसे कहते हैं बहन जी भाई भी दुआ किया करो, तो कहते हैं नहीं भाई साहब मैं सुबह उठ के दुआ करना, ऐसे ही कहते हैं ना। वो कहते हैं हम दुआ करते हैं, हम अपने घर में भी दुआ करते हैं, हम
लोगों में भी बैठ कर दुआ करते हैं। वो ऐसी बातें, कभी रोजे हों तो हम रोजे के लिए कहते हैं तो वो लोग कह देते हैं कि फैसल नहीं ऐसी रोजे रखते हैं, ऐसे ही कहते हैं। वो बातें जो वो नहीं करते वो हमसे कहते हैं कि हम करते हैं। क्यों? ये जताने के लिए कि वो खुदा में बड़े ईमानदार हैं। जताने की जरूरत नहीं। खुदावंद कहता है कि वो सबसे छोटा किया जाएगा जो अपने आप पर हंकार करेगा, जो अपनी उन नेमतों पर अपने आप को बड़ा दिखाएगा, वो सबसे छोटा किया जाएगा। हम घरानों में जब दुआ करते हैं, हमारी दुआ कमजोर क्यों हो जाती है? हमारी दुआ असर क्यों नहीं करती? हमारी दुआ में वो जोर क्यों नहीं होता? क्योंकि हम दुआ जब करते हैं तो खुद गर्जी की दुआ करते हैं। मलाकी नबी में खुदा कहता है कि तुम मुझे हर बात में क्या करते हो? ठगते हो। मलाकी नबी की मार्फत कहता है अब तुम वैसी दुआएं नहीं करते क्योंकि तुम्हारी दुआएं मेरे कान तक नहीं पहुंचती, क्योंकि सब खुद गर्जी की दुआएं। तुम जो मांगते हो अपने लिए मांगते हो, और इसलिए मैं तुम्हें नहीं मिलता कि तुम खुद गर्जी से मांगते हो। मेरे अजीजों, देखें, हम जो खुदा के कलाम पर भरोसा रखेंगे, हम जो यीशु अल मसीह पर, जिसके वसीला हम फजल में है, रहम में है, और रहम एक ऐसी अजीब चीज है। कलाम मुकद्दस को शुरू से आखिर तक पढ़े तो रहम एक ऐसी चीज है, कोई भी चीज खुदा में कुछ भी देखें तो वो बटा हुआ है, लेकिन यीशु अल मसीह की बदौलत रहम ऐसा था कि उसमें भेदभाव नहीं किया। वो ईमानदार पर भी वैसा ही था और वो गुनहगार पर भी वैसा ही था, क्योंकि वो रहम यीशु की बदौलत दुनिया पर छाया और वो रहा रहम अब तक दुनिया पर है। इतने तकलीफों के बाद, इतने गुनाहों के बाद भी आप सब सुनिए, आप सब महफूज हैं। छोटी छोटी खताओं की वजह से अगर हम पर कोई आजमाइश या कोई दुख आ जाता है तो वो चंद दिनों की होती है, क्योंकि खुदा अपने कलाम में कहता है कि मैं ज्यादा देर तक अपने प्यारों को आजमाइश में न रहने दूंगा। ये हकीकत है। लेकिन भरोसा इस बात के लिए हम चले थे कि जब हम खुदा पर भरोसा नहीं करते, हम अपने आप पर भरोसा करते हैं कि हम जो दुआएं मांग रहे हैं वो पहुंच रही है, वो सब गलत है, क्योंकि खुदा कहता है कि तू जो खुद गर्जी से मांगता है वो काबिल कबूल ना होगा। तू जो मांगता है इसलिए तू बड़ा है तो सबसे छोटा किया जाएगा, और अगर तू छोटा है तो सबसे बड़ा किया जाएगा। अगर तेरी दुआ नहीं पहुंचती तो ईमान से तेरी दुआ पहुंचेगी और मेरे हजूर आकर तुम्हारा घराना और तुम्हारे घराने के लोग बरकत पाएंगे। खुदा में मेरे अजीजों, हम इस बात पर यहाँ पर जमा हैं कि हमारा ईमान इन दिनों में निहायत कमज़ोर है। सुबह मैं वॉइस पर भी ये बात कर रहा था कि हम अपनी ही मुसीबतों में घिरे हुए हैं, क्योंकि हम खुदा पर तकिया नहीं करते। अपना भरोसा, अपना ईमान, अपना यकीन उस राह पर लगा दे जो खुदा यीशु की मार्फत है, क्योंकि आप सबों पर उसने क्या किया? रहम किया। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि हमारा खुदा बहुत मेहरबान, बेशक वो सबों पर, चाहे वो कोई गुनहगार है या चाहे कोई ईमानदार है, वो सबों पर मेहरबान है। वो अपनी शफकत मोहब्बत वो उन लोगों पर जाहिर करता है जो रूह और सच्चाई से उसके आगे झुकते हैं। अगर वो गुनहगार भी हैं तो उनकी दुआएं सुनी जाती हैं, और अगर वो ईमानदार हैं और रूह और सच्चाई से दुआ नहीं करते तो उनकी दुआ नहीं सुनी। आज मेरे कलाम का मकसद ये था कि देखिए, आप अपने आप पर भरोसा छोड़ दें कि अगर हमारे पास की ताकत है या हमारे पास की दौलत की ताकत है या हमारे पास वो जो हम दुआएं करते हैं खुद गर्जी की उनकी ताकत है, तो वो सब बेफायदा है। फ़ायदा ये है कि हम सब मिलकर खुदा के हुज़ूर दुआ करें और खुदा हमारी दुआओं को सुने। अपना ईमान इतना कामिल कर दें कि सिर्फ आपका भरोसा ईमान किस पर होना चाहिए? किस पर होना चाहिए? किस पर होना चाहिए? यीशु अल मसीह पर, यीशु अल मसीह पर, खुदा बाप पर और रूहुल कुद्दस पर आपका भरोसा होना चाहिए। खुदावंद आप सबों को बरकत दे। आए अपने सर को झुकाते हुए दुआ, अपने सर को झुकाएं
अजीब बशीर खुदाए कादिर रब्बियत के बाद सलामती के शहजादे, दिल की गहराइयों से तेरे शुक्रगुजार हैं तेरे जिंदा कलाम के लिए। हमारा भरोसा ईमान तुझी पर है खुदावन, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम खुद घर से तो खुदावन तेरे खून के वसीला छुड़ा लिए गए। जब हम गुनहगार थे तो तेरे खून के वसीला हमें बचा लिया गया। जब हम उस अंधेर कोठरी में थे तो तेरे लहू के वसीला हमें उन अंधेर कोठरियों से बाहर निकाला गया। अब हम पर कोई बोझ नहीं और अब हम पर कोई आजमाइश नहीं आएगी, अब हम पर कोई दुख नहीं आएगा, क्योंकि हमारा भरोसा, हमारा यकीन, हमारा कामिल यकीन तू है। क्योंकि तू खुद कहता है तुम्हारा दिल न घबराए, मैं बाप के पास जाता हूँ तुम्हारी जगह तैयार करता हूँ। तुम्हारा दिल न घबराए, मैं दुनिया से आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। ऐ कादिर मुतीर खुदा तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ तेरी तमजीद करते हैं कि तू अपने वादों में सच्चा है और तेरे वादों से हम निजात पाते हैं। तेरे वादों से हम खुदावन आज जिंदों की जमीन पर खड़े हैं। ऐ कदूस खुदा, लश्करों के खुदा, तमाम बीमारों को नादारों को तेरे मस्वा पर रखता हूँ। खास कर खुदावन अपनी बहन गुलनाज को जो खुदावन हॉस्पिटल में बीमार हैं। ऐ जलाली पिता, तमाम बीमारी के गंदे जरासीमों को, तमाम दुख को, तमाम दर्द को, हर किस्म की परेशानियों को, हर किस्म की कमजोरियों को यीशु के नाम से दूर कर। ऐ जलाल के बादशाह, अपना हाथ बढ़ा ताकि घराना खुशहाली सलामती में अपने घराने की तरफ रवाना हो। ऐ कदूस खुदा, बहन मुसर्रत के लिए दुआ करता हूँ, उसे छू खुदावन, तमाम कमर की तकलीफ को यीशु के नाम से दूर कर। ऐ कदूस खुदा, लश्करों के खुदा, बहन शुमाइला के लिए दुआ करते हैं, वो भी अस्पताल में एडमिट है। तमाम गंदे जरासीमों को यीशु के नाम में खत्म कर ताकि पूरी तरह वो शिफा पाए। ऐ जलाली पिता, लश्करों के खुदा, मिसेस सैल्डर के लिए दुआ करते हैं। ऐ जलाली पिता, उनको शिफा पर उनके साथ हो, जहनी दिली तौर पर अपनी बंदी को अपने हाथों में रख। कलीसिया में अगर कोई बीमार है, कोई किसी दुख में है, किसी भी परेशानी में है, यीशु के नाम से खुदावन घरानों को तसल्ली, खुशी और खुदावन सलामती बख्श। ऐ कदूस खुदा, लश्करों के खुदा, तेरे आगे आज भी खाकसारी से झुकते हैं, मिन्नत करते हैं, एक बार फिर बहन गुलनाज को खास तेरे शिफा चाहते हैं। हमारी आज तमाम मोहब्बत को, प्यार को, हमारी इस खुदावन तमाम रफाकत को अपने हुजूर कबूल कर। तेरे प्यारे बेटे खुदावन यीशु के नाम से मांगते हैं।